Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 2 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I'm your computer teacher. Now we will start lesson number 3, keyboard. So now all of you look at in your textbook. We will start lesson number 3, keyboards. So all of you know what is the use of keyboard? Keyboard is used for a typing when we want to write on a computer. So that time we are using a keyboard. So in this lesson now we will learn about a keyboard. So when we are using keyboard when we want to write on a computer. When we want to write on the book, so that time we are using a pencil or pen. So like that, when we want to write on a computer, so that time we are using a keyboard. So total numbers of keys on the keyboard. How many? 104 keys on the keyboards. A keyboard is a device that consists of a numbers of keys. कीबोर्ड इज अ डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर्स ऑफ कीज. कीबोर्ड एक डिवाइस है, उस डिवाइस में क्या होते हैं? नंबर्स ऑफ कीज होती है. क्या होती है? नंबर ऑफ कीज होती है. इट हेल्प अस टू टाइप, गिव कमांड, प्ले गेम एंड मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. जो कीबोर्ड होता है उसका यूज़ कमांड देने के लिए होता है, प्ले गेम खेलने के लिए भी कर सकते हैं, मूव अगर हमें मूव करना है एरो को फिर भी कर सकते हैं, वन पॉइंट टू अनदर, मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर मतलब हमें मूव करना है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. सो उसके लिए भी हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं. So now this word is the new command. So this is homework. Write in your notebook 5 times. How many times you will be write? 5 times in your notebook. So command spelling COMMANDS commands. Command spelling COMMANDS command. So this spelling you write in your notebook 5 times. Okay. Play games and move from one point to another. We type on computer by pressing the keys on the keyboards of a computer. Whatever you type on keyboard appears on the monitor. जो कुछ भी हम क्या करेंगे? कीबोर्ड से लिखेंगे वो कहाँ पे दिखता है? हमें मॉनिटर के स्क्रीन पे. जो कुछ भी हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं वो हमें कहाँ पे दिखता है? मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखता है. तो हमारी जो कीबोर्ड होता है, ये क्या है? कीबोर्ड है. उसमें बहुत सारी कीज़ होती है. उसका यूज़ करके हम कमांड्स दे सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और हम मूव भी कर सकते हैं. जो कुछ भी हम कीबोर्ड का यूज़ करेंगे वो सारा वर्क हमें कहाँ पे दिखता है? मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखता है. और कीज़ किसको बोलते हैं? जो छोटी छोटी बटन्स होती है हमारे कीबोर्ड में उसको बोला जाता है कीज़. कीबोर्ड में 2 वर्ड छुपे हैं, एक की, बोर्ड. की मतलब ये जो छोटे बटन से उसको की बोला जाता है, एंड बोर्ड मतलब ये क्या है? एक बोर्ड है, उसमें बटन से की और बोर्ड दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया है? कीबोर्ड. क्या बन गया है? कीबोर्ड. देन अ कीबोर्ड जनरली हैज़ अ 104 कीज. जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें जनरली कितने कीज होती है? 104 कीज होती है. ओके. जनरली जो हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 होती है. कुछ कीबोर्ड में 105 भी हो सकते हैं, देन 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 2 भी हो सकते हैं, 102, 103, 104, 105. लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें कितने बटन्स होती है? 104 कीज होती है हमारे कीबोर्ड में, जो जनरल वाला कीबोर्ड होता है. ओके. नाउ लेट्स इन दिस लेसन नाउ वी विल लर्न अबाउट अ कीबोर्ड. कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे और कुछ अलग अलग कीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे कीज़ में होता है. बट बिफोर स्टार्टिंग अवर topic, first I want to show one video about this topic. So now all of you look at here.
about the different keys in the keyboard. But first, tell me for what purpose is a keyboard used for in a computer? Well, we use the keyboard to type numbers, words and symbols on the computer. Correct. You see, a keyboard has 6 different types of keys on it. What are they, Kliko? They are the number keys, arrow keys, alphabet keys, special character keys, function keys and special keys. Tell me more about them. Sure, let's begin with the number key. The number keys are also called numeric keys. There are total 10 numeric keys from 0 to 9. There are a total of 2 sets of numeric keys on the keyboard. The first set are on the top row of the keyboard and the second is present on the number pad of the keyboard. All the number keys have special characters or symbols printed on them. Why, Kliko? Because these same keys are also used for other purposes. These 4 at the bottom are the arrow keys, aren't they, Kliko? Yes, these are the arrow keys. The arrow keys are also called cursor control keys. These keys are used to move the cursor up, down, left or right. Which arrow key is used to move the cursor up? Yes, look at the keys. This key moves the cursor up. This key moves the cursor down. This key moves the cursor to the left. And this key moves the cursor to the right. Rennie, do you know how many alphabets are there in English from A to Z? I think there are 26 alphabets in English. You are right, Rennie. As there are 26 alphabets in English, so there are 26 alphabet keys in the keyboard. The alphabet keys are used to write letters or paragraph in the computer. Look at these keys. They have special sign or symbols on them. How can we use these keys, Kliko? As there are also numbers on them. Very good question, Rennie. To use these special symbols, keys, we have to press the shift key and the number key with that symbol together. What are these keys on the very top row of the keyboard? They are function keys. These keys are used to perform special tasks. There are a total of 12 function keys on the keyboard from F1 to F12. All function keys are used to perform a different function on the computer. I can tell you about F1. It is used for help. What are the special keys used for? The special keys are used to perform special and unique functions. Which are the special keys on the keyboard? Look at the keyboard. The caps lock, num lock, enter, shift, alt, delete, tab, escape, backspace and the space bar. Key are the special keys. What are each of the keys used for? The caps lock key is used to type letters in the uppercase or in capitals. So press this key. Hey, I pressed the caps lock key and a light glows in the keyboard. Yes, it means the caps lock key is on. If this key is on, then any letter you type will appear in capitals on the screen. If you wish to type again in small letters, then press the caps lock key again to turn it off. Similarly, when the num lock key is turned off, the number present on the numeric pad starts working. What is the space bar key used for, Kliko? The space bar key is used to move the cursor one space forward. You can see that it is the longest key in the keyboard. Look at this key. It is the backspace key.
It is used to erase the wrongly typed characters. In case you make an error while typing, you can use this key to delete the characters of letters to the left of the cursor. What is the delete key used for, Clicko? This key is similar in the function to the backspace key. Using this key, you can delete a wrong character and replace it with the correct one. The difference between the delete key and the backspace key is that the delete key erases the character on which the cursor is placed. What are the enter keys used for? There seems to be 2 of them in the keyboard. The enter key is used to move the cursor to the start of the next line. You can use either of the enter keys to move to the next line while you type. Now, I hope you will remember about the different types of keys on the keyboard, Rennie. Definitely, Clicko. Thank you for your help. I hope all of you liked video and all of you nicely understood about a keyboard. So which type of keys present on a keyboard. So now we will start. So now first is the cursor control key. Cursor control keys is a small blinking line on the monitor that show the position of next letter or number to be entered. The cursor look like that line is called a cursor. A cursor control keys, also called arrow keys, are used for move the cursor on the monitor. So how many cursor key on a computer? 4 cursor key on a keyboard. How many cursor key? 4 cursor key on a keyboard. So which 4? Left, right, up and down. Which? Left, right, up and down. Now look at here, this is the keyboard. यहाँ पे भी 4 cursor control key है. This is the left, then this one is the right, up and down. So this key use for up. ये जो की है उसका यूज किसके लिए किया जाता है? हम कुछ पैराग्राफ टाइप करें, अगर हमें क्या करना है, ऊपर से नीचे आना है तो उसके लिए डाउन करेंगे, नीचे से ऊपर जाना है तो अप वाली बटन दबाएंगे, राइट से लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट वाली बटन दबाएंगे, लेफ्ट से राइट जाना है तो उसके लिए लेफ्ट वाली बटन दबाएंगे. कर्सर कंट्रोल की. A cursor is a small blinking line on the monitor. हमारे मॉनिटर पे एक स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन दिखेंगी जब हम जो जहाँ पे हमें लिखना है वहाँ पे एक क्या होगी, जो टेक्स्ट जैसे वर्ड होता है, नोटपैड होता है, अगर उसमें कुछ हमें टाइप करना है तो वहाँ पे एक स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन दिखती है, उसको बोला जाता है कर्सर. नाउ लुक एट हियर, दिस वर्ड आई एम ओपनिंग. यहाँ पे देखो एक स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन दिख रही होगी. दैट स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन यहाँ पे है. ठीक है, अभी वहाँ पे मैं आपको टाइप करके दिखाती हूँ. जैसे ए टाइप किया तो उसके साइड में एक छोटी सी लाइन ब्लिंक हो रही है, तो वो क्या होती है, उसको बोला जाता है कर्सर. और कर्सर क्या शो करता है कि यहाँ पे हमारा नेक्स्ट लेटर आएगा. मतलब ए हो गया, ए के बाद कर्सर दिख रहा है, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बी. देखो, फिर बी के सामने क्या होगा, फिर से कर्सर दिखाएगा. मतलब ये क्या शो करता है कि कर्सर हमें शो करता है कि यहाँ पे हमारा नेक्स्ट लेटर आएगा. कर्सर कंट्रोल की यूज फॉर अ move from left side, right side, up side and down side. So that's spelling cursor control key. This is the homework for you. Write in your notebook 5 times. How many times you will be write? 5 times in your notebook. So cursor control key spelling CURSOR, cursor. Then control spelling CONTROL, control. And key spelling KEYS, keys. कर्सर कंट्रोल कीज. देखो कीज के साइड में एस लगा है क्योंकि कर्सर कंट्रोल कीज कितनी होती है, 4 कर्सर कंट्रोल कीज होती है. सो कर्सर कंट्रोल कीज, अ कर्सर
This is the homework for you. Write in your notebook 5 times. How many times you will be write? 5 times. Cursor control keys. A cursor is a small blinking line. एक क्या होती है? स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन होती है, जैसे यहाँ पे दी है और मैंने आपको दिखाया भी थी. Small blinking line on the monitor that show the position of next letter or number to be enter. और वो हमें शो करता है कि यहाँ पे हमारा नेक्स्ट लेटर और नंबर आता है. वो क्या शो करता है कि नेक्स्ट लेटर यहाँ पे हमारा आएगा, नंबर आएगा. नेक्स्ट लेटर और नंबर टू बी एंटर. द कर्सर लुक लाइक दिस. कर्सर कैसे दिखता है? ऐसे लाइन की तरह दिखता है. द कर्सर कंट्रोल कीज आल्सो कॉल्ड अ एरो की. उसको क्या बोला जाता है? एरो की. दिस स्पेलिंग आल्सो 5 टाइम्स होमवर्क. एरो का स्पेलिंग ARROW. कर्सर कंट्रोल की इज आल्सो नोन एज अ एरो की. उसको क्या बोला जाता है? एरो कीज बोला जाता है. आर यूज फॉर मूविंग द कर्सर ऑन द मॉनिटर. और उसका यूज किसके लिए किया जाता है? मॉनिटर के स्क्रीन में जो कुछ भी हमें दिखता है, अगर उसको हमें क्या करना है? मूव करना है. लेफ्ट राइट क्या करना है? मूव करना है. लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, देन अप साइड से, डाउन साइड से, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है. अ कर्सर कैन बी मूव अप डाउन राइट और लेफ्ट. किसके लिए यूज़ किया जाता है? राइट अप एंड डाउन कर्सर करना है तो उसके लिए कर्सर कंट्रोल की का यूज़ किया जाता है. सपोज यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, हाउ मेनी कर्सर कंट्रोल की, हाउ मेनी एरो की. सो हाउ मेनी एरो की एंड हाउ मेनी कर्सर की. कर्सर कंट्रोल की इज आल्सो नोन एज अ एरो की. कर्सर कंट्रोल की इज आल्सो नोन एज एरो की. हाउ मेनी एरो की? 4 एरो की. हाउ मेनी एरो की? 4 एरो की. So which 4? Up, down, left, right. Which 4? Up, down, left and right. So up, अगर हम कुछ लिख रहे हैं और लिखते लिखते हमें क्या करना है? ऊपर वाले साइड में जाना है. कुछ हमारा बाय मिस्टेकली हमें कुछ रॉन्ग हो गया और हमें लगता है कि मुझे ऊपर जाना है इरेज करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? अप वाली बटन दबाएंगे. अगर हमें फिर से नीचे आना है तो हम डाउन वाली बटन दबाएंगे. देन लेफ्ट, अगर लेफ्ट साइड पे जाना है तो लेफ्ट वाली बटन दबाएंगे. राइट साइड पे जाना है तो राइट वाली बटन दबाएंगे. सो ये क्या है? एरो की है. इसको कर्सर कंट्रोल की भी बोला जाता है. व्हाट इज कॉल्ड? कर्सर कंट्रोल की भी बोला जाता है. नाउ लुक एट हियर. ये मैं यहाँ पे आपको टाइप करके दिखा रही हूँ. ठीक है, यहाँ पे AB लिखा है और लिख के दिखा रही हूँ. जैसे यहाँ पे देखो मैंने ये लिखा है. ठीक है, अभी यहाँ पे नीचे जा रही हूँ. फिर से ये मैंने टाइप कर दिया है. देन नाउ लुक एट हियर. यहाँ पे आपको के बाजू में कर्सर दिख रहा है. ठीक है, अभी वो कर्सर मुझे कहाँ लेके जाना है? ऊपर लेके जाना है, अप साइड पे लेके जाना है. तो ये जो अप वाली बटन है उसको दबाऊंगी. लुक एट हियर. जैसे मैंने उसको ऊपर की तरफ दबाया तो वो देखो कर्सर हमारा ऊपर हो गया. अभी वो कर्सर फिर से हमें नीचे लाना है तो मैं क्या करूँगी? जो डाउन वाली बटन है उसको दबाऊंगी. लुक एट हियर. नाउ कमिंग डाउन साइड. यहाँ पे कैसे आ गया? यहाँ पे डाउन साइड हो गया. ठीक है, नाउ मुझे अगर लेफ़्ट साइड पे जाना है तो लेफ़्ट एरो बटन दबाऊंगी. देखो लेफ़्ट वाली बटन दबाऊंगी तो वो लेफ़्ट साइड पे मूव हो रहा है कर्सर. देन राइट साइड पे जाना है तो राइट साइड की बटन दबाऊंगी तो ये राइट साइड पे मूव हो रहा है. लुक एट हियर. कर्सर इज मूविंग. तो इसका यूज़ अगर हमें एरो को लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन करना है तो उसके लिए किया जाता है. दिस कीज इज नोन एज अ एरो की और अ कर्सर कंट्रोल की. सो हाउ मेनी कर्सर कंट्रोल की? 4 कर्सर कंट्रोल की present in our keyboards. How many? 4 cursor control key. Then now all of you look at in textbook. The arrow mark on key show the direction on which the cursor move
मूव व्हेन दिस की आर प्रेजेंट। यहाँ पे देखो आपको 4 एरो दिख रहे, ठीक है। मतलब ये वाला एरो कौन से साइड पे दिखा रहा है, इस साइड पे दिखा रहा है। कैसे एरो है ये, ऐसा एरो है, मतलब ये कहाँ पे मूव हो रहा है, इस साइड पे मूव हो रहा है। क्या कहाँ मूव हो रहा है, ये इस साइड पे मूव हो रहा है। ये वाली एरो ऐसा है, मतलब हमारी कर्सर इस साइड पे मूव हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद राइट साइड पे है, मतलब इस साइड का एरो है, मतलब ये वाले साइड पे कर्सर मूव हो जाएगा। डाउन साइड पे है तो यहाँ पे एरो डाउन साइड पे दिखा है, तो ये कहाँ पे मूव हो रहा है, डाउन साइड पे मूव हो रहा है। देन ये क्या है, अप साइड है, तो ये अप साइड मतलब ऊपर मूव हो रहा है। तो ये हमें एरो शो कर रहा है कि इसकी पोजीशन क्या है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये लेफ्ट जा रहा है, ये राइट जा रहा है। तो दिस की इज नोन एज अ एरो की एंड कर्सर कंट्रोल की। दिस की इज नोन एज एरो की और कर्सर कंट्रोल की। Then next is the backspace key. These also spelling you have homework, write in your notebook. How many times? 5 times. So backspace key, B-A-C-K back, S-P-A-C-E space and key spelling K-E-Y key. So backspace key का यूज़ किसके लिए किया जाता है, अगर हमें कुछ इरेज करना है तो उसके लिए हम backspace key का यूज़ करते हैं। तो backspace key look like this type. When the press backspace key, erase anything type on the left side of the cursor. जो हमारे लेफ्ट साइड पे होगा, लेफ्ट साइड कौन सी, ये वाली साइड है, इस साइड पे जो वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे हमने क्या लिखा है, कीबोर्ड लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, कीबोर्ड लिखा है। अगर हमारा जो एरो है कहाँ पे है, वाई के पास में है, कहाँ पे है, वाई के बाजू में है। अगर मैं बैकस्पेस की दबाऊंगी तो ये वाई क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो बैकस्पेस की जब हम दबाते हैं तब कौन से साइड से इरेज होता है, लेफ्ट वाले साइड से इरेज होता है। कौन से साइड से होता है, लेफ्ट वाले साइड से इरेज होता है। व्हेन प्रेस द बैकस्पेस की, इरेज एनीथिंग टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। कहाँ से इरेज होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। इन दिस एग्जाम्पल यू नीड टू करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ कीबोर्ड। यहाँ पे देखो कीबोर्ड के स्पेलिंग में गलती से डबल वाई आ गया है। अभी 1 वाई को हमें इरेज करना है। क्या करना है, 1 वाई को इरेज करना है। तो क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ द कर्सर आफ्टर द वाई। क्या करेंगे, वाई के बाद हम क्या करेंगे, कर्सर को लेके जाएंगे एंड देन यूज द बैकस्पेस की टू इरेज द एक्स्ट्रा वाई। और फिर हम क्या करेंगे, बैकस्पेस की को दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। सो नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कीबोर्ड का स्पेलिंग लिखेंगे। कीबोर्ड स्पेलिंग KEY डबल वाई लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 1 वाई को डिलीट करना है। देन BOARD। नाउ कीबोर्ड का स्पेलिंग क्या होता है, KEYBOARD कीबोर्ड। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, डबल वाई हो गया। अभी हमें 1 वाई को इरेज करना है। क्या करना है, 1 वाई को इरेज करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी कौन सी बटन है, लेफ्ट वाली एरो बटन है, वो लेके जाएंगे वाई के बाद। कहाँ पे लेके आ गई मैं, वाई के बाद में लेके आई। अभी मैं क्या करूँगी, जो बैकस्पेस की है उसको दबाऊंगी। जैसे बैकस्पेस की को दबा दूंगी तो 1 वाई क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, जो कर्सर के पहले है। सो लुक एट हियर, मैं अभी बैकस्पेस दबा रही हूँ। देखो जैसे मैंने बैकस्पेस दबा दी तो 1 वाई क्या हो गया है, कट हो गया। तो जो भी लेटर क्या होगा, कर्सर के पहले होगा, क्या होगा, जो भी लेटर कर्सर के पहले होगा वो बैकस्पेस की से इरेज होगा। तो कौन से साइड से हो गया, लेफ्ट वाले साइड से इरेज हो गया। फिर से देखो मैं एरो डी के पास लेके आ रही हूँ, ठीक है, डी के पास लेके आ गई। अभी मैं फिर से बैकस्पेस दबाऊंगी, देखो बैकस्पेस दबाऊंगी तो डी कट हो जाएगा। फिर से बैकस्पेस दबाऊंगी तो आर कट हो जाएगा। फिर से बैकस्पेस दबाऊंगी तो ए हो जाएगा। देन अगेन बैकस्पेस ओ, अगेन बैकस्पेस बी, अगेन बैकस्पेस वाई, अगेन बैकस्पेस ई एंड अगेन बैकस्पेस के।
सो अगर हमें कुछ इरेज करना है लेफ्ट वाले साइड से तो उसके लिए हम कौन सी बटन दबाते हैं, बैक स्पेस की का यूज करते हैं। दैट टाइम वी आर क्लिकिंग अ बैक स्पेस की। सो बैक स्पेस स्पेलिंग होता है BACKSPACE। तो कुछ कंप्यूटर में बैक स्पेस लिखा हुआ रहता है, जैसे मेरा जो कीबोर्ड है उसमें बैक स्पेस लिखा है। लुक एट हियर, ये मेरा कीबोर्ड है, कीबोर्ड में क्या लिखा है, बैक स्पेस भी लिखा है और एरो भी दिया है, ठीक है। लेकिन जो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे जो बैक स्पेस दी है उसमें क्या है, सिर्फ एरो दिया है। तो कुछ जो हमारे बैक स्पेस की होती है उसमें बैक स्पेस भी लिखा है रहता है, नहीं तो अदरवाइज सिर्फ वहाँ पे एरो रहता है। सो बैक स्पेस की इज यूज फॉर इरेजिंग। Backspace key is used for erasing. When press the backspace key, erase anything type on left side of the cursor. कौन से साइड से इरेज होता है, लेफ्ट वाले साइड से इरेज होता है। In this example you need to correct the spelling of keyboards or a keyboard। यहाँ पे कीबोर्ड का स्पेलिंग डबल वाई आ गया है, अभी 1 वाई को हमें इरेज करना है। तो पोजिशन ऑफ कर्सर आफ्टर फर्स्ट वाई, फर्स्ट वाले वाई है उसके सामने हम कर्सर लेके आएंगे। देन यूज द बैक स्पेस की टू इरेज द एक्स्ट्रा वाई। फिर क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा जो वाई है वो इरेज हो जाएगा। सो दिस इज द बैक स्पेस की। देन नेक्स्ट इज द डिलीट की। ओके, डिलीट की का भी यूज सेम है, इरेज करने के लिए। इरेज करने के लिए ही होता है डिलीट की का, लेकिन डिफरेंट बिटवीन द डिलीट की एंड बैकस्पेस की। डिलीट की और बैकस्पेस की का डिफरेंट क्या होता है, जब हम बैकस्पेस की को दबाते हैं तब इरेज होता है लेफ्ट साइड से। कैसे होता है, लेफ्ट साइड से इरेज होगा। और जब हम डिलीट की दबाएंगे तब राइट साइड से डिलीट होता है। कौन से साइड से, राइट साइड से डिलीट होता है। व्हेन प्रेस द डिलीट की, इरेज द एनीथिंग टाइप ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। कौन से साइड से इरेज होता है, राइट साइड ऑफ द कर्सर। इन दिस एग्जाम्पल यू नीड टू करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ मॉनिटर। यहाँ पे देखो मॉनिटर का स्पेलिंग गलत हो गया, यहाँ पे आर आ गया है। मॉनिटर के स्पेलिंग में आर आता है क्या, नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, ओ है, ओ के लुक एट इट, पोजिशन ऑफ द कर्सर आफ्टर द फर्स्ट ओ के बाद में हम कर्सर लेके आएंगे। एंड देन यूज द डिलीट की टू इरेज द आर। फिर आर को डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे और डिलीट बटन दबाएंगे। सो दिस स्पेलिंग इज डिलीट की। दिस इज द होमवर्क फॉर यू। सो राइट इन योर नोटबुक 5 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। डिलीट की का स्पेलिंग DELETE डिलीट, DELETE डिलीट, की स्पेलिंग KEY की। सो डिलीट की। डिलीट की का यूज भी इरेज करने के लिए किया जाता है, लेकिन वो कौन से साइड से होता है, राइट वाले साइड से डिलीट होता है। So now look at here. Now I am showing you how to delete this one. Look at here. Okay, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉनिटर का स्पेलिंग लिख देंगे। क्या लिखेंगे, मॉनिटर का स्पेलिंग लिखेंगे। मॉनिटर स्पेलिंग MOR, हम क्या करेंगे, एक आर एक्स्ट्रा लिख, NITOR। मॉनिटर का स्पेलिंग क्या होता है, MONITOR आता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, आर आ गया है गलती से। अभी हमें क्या करना है, 1 आर को डिलीट करना है, 1 आर को डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो एरो है वो कहाँ लेके आएंगे, आर के सामने लेके आएंगे। देखो मैं कहाँ लेके आई एरो को, आर के सामने लेके आ गई। अभी मैं क्या करूँगी, डिलीट की दबाऊंगी। देखो यहाँ पे डिलीट की है, उसको दबाऊंगी। जैसे डिलीट की को दबाऊंगी तो आर कट हो जाएगा। लुक एट इट, जैसे मैंने डिलीट की दबाए तो क्या लेटर कट हो गया है, आर कट हो गया है। जैसे अभी मैं डिलीट बटन दबाऊंगी, एन कट हो जाएगा। और डिलीट की दबाऊंगी, आई कट हो जाएगा। और डिलीट की दबाऊंगी, टी कट हो जाएगा। और डिलीट की दबाऊंगी, ओ कट हो जाएगा। और डिलीट की दबाऊंगी, आर कट हो जाएगा। सो डिलीट की इज यूज फॉर अ इरेजिंग फ्रॉम द राइट साइड। अगर हमें राइट साइड से कुछ डिलीट करना है तो उसके लिए हम डिलीट की का यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ द
delete key, backspace key and cursor control key. So that 3 spelling homework for you. Then next is the caps lock key. This we will be see in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.